تبدیلی آئے گی، 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 تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو، دل میں صحابہ کی جب عظمت آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، صدق ہے صدیق سے، عدل ہے جرار سے، ہے حیا عثمان سے اور ہمت کرار سے۔ علامہ اقبال کو حکومت کی جانب سے سر کا خطاب بھی ملا تھا، پر افسوس یہ بڑی شخصیت اب ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ان کا میزار 21 اپریل 1958 عیسوی کو لاہور میں ہوا۔ مجھے بھی ان کی شاعری بہت پسند ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتی ہوں اور اپنی جگہ لیتی ہوں۔ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی کب تک پاؤں میں زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں سروں کا ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، مسلمانوں سروں کا ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمنوں کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے لیکچرر سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ میری مراد محترمہ عائشہ بیگ سے ہے، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ساری بولتے ہیں آپ کیا چھوٹے ہو جائیں گے، آپ کا نام تھوڑا تبدیل ہوگا۔ یہی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ آج نیشنل ایجوکیشن ڈے آپ جو منا رہے ہیں تھا اور اپنی عمر کے 14 سال میں وہ صحافہ شروع کر، اور اگر آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہندوستان میں ہے تو وہ صرف مولانا آزاد کی مرحومی کی وجہ سے۔ جب پارٹیشن ہو رہا ہے تو اس کے مخالفین میں سخت اگر کوئی مخالف تھے تو وہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد کہ پاکستان الگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مسلمان بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کے 2 بار صدر بنے، اور آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے، انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے نوجوان صدر جو ہے وہ آپ کے مولانا ابوالکلام آزاد۔ آپ لوگ اتنے میں غلطی کرے کہ ایکچولی بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد، ہندوستان کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ بھارت رتن جو ابھی تک 46 لوگوں کو دیا گیا، جس میں سے ایک آپ کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ تو جب بھی ان کا نام لیا جائے بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد، کیونکہ تعصب کے اس دور میں صرف 6 لوگوں کو مسلمانوں کو بھارت رتن ملا، جس میں سے انہیں 1992 میں بعد از مرگ بھارت رتن ملا۔ تو بھارت رتن دینے کی وجہ کیا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ خدمات رہی۔ جب آزاد ہوا ہندوستان سے کئی ساری یونیورسٹیاں تھیں، ان کو آفر کیا گیا کہ بھائی آپ کو کیا ہونا، مجھے تعلیم، کیوں کہ اس مسلم طبقے کو کیا ضروریات، ہندوستان کے لوگوں کو کیا ضروریات ہے، میں اس کو پیش کر سکوں یا دے سکوں۔ اس کے نتیجے میں آج ہم جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں، اس یونیورسٹی کا جو انتظامیہ چلاتی ہے UGC
यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कायम किया। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आज जो IITs बोलते हैं, उसकी इब्तिदा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अपने कॉलेज में जो वोकेशनल एजुकेशन है, फनी तालीम जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान आबादी बहुत ज़्यादा थी, हर एक यहाँ पर सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को उस वक्त ये अंदाजा था कि हम हर एक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, कि अगर इंसान हुनर सीख ले तो काम कर लेता। तो उसी वक्त उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत की। वो आज हमारे पास यहाँ तक आके वोकेशनल ऊपर से देखते ना आप लोग, ये सब लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या है। हम एक दिन देखते हैं कि जो मौलाना आजाद पैदा हुए उस दिन आते ओके वेल गुड, आप लोग बहुत अच्छी शायरी करे, बहुत अच्छी तकारीर करे, लेकिन इनके जो एहसासात थे, जो आपके लिए जज्बात थे, खिलाफत तहरीक को चला के हिंदू और मुसलमान बेचे करे, हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए लड़े, लेकिन आखिर में एक बात बोल के गए। जब आप उनकी ज़बानें उन्हें पढ़ी गई इंडिया ऑफ फ्रीडम, इसमें जुमला लिखा हुआ है, सांप और बिच्छू एक सुरंग में रह सकते, हम लोग नहीं रह सकते। तो आपको अगर यहाँ रहना है तो तालीम हासिल उस दर्जे में पहुंचो जहाँ से आपको कोई खींच ना सके। तो उसके लिए सबसे पहला जो हथियार दिया गया वो तालीम का दिया गया आपको। मौलाना आजाद ने तालीम के हर शोबे में मुसलमानों को बच्चा पढ़ाया। अगर वो बच्चा मदरसा पढ़ता है तभी वो आकर फिर फनी तालीम हासिल कर सकता है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ा ही नहीं। तो आप लोग जो आते हैं, जैसे मदीन भाई बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बारे में बोले, ये सब जो अल्फाज मदीन भाई कहते होंगे, लेकिन मेरे भी ऐसा बात वही थे। जब क्लास में जाते हैं तो 4-5 बच्चे लिखते, तालीम आपको नौकरी दिलाने के लिए नहीं है। आपको पता है कि नहीं कि मौलाना आजाद इसके लिए नहीं, बगैर स्कूल के सहाफत करे, लीडरी करे, उनके दो ही शौक थे, एक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना, दूसरा सिगरेट। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगा तो उनके पास इतनी फ्रेंड आती थी, पता है स्कूल नहीं के वाली साहब के पास ही इंसान के अंदर आपसे पास काबिलियत रहती है। बच्चे को बोले मार्क्स कोई वैल्यू नहीं करते, आप टेंथ पढ़े तो मार्क्स पूछता, आपको इंटरव्यू पूछता, हो गया आप क्या पूछता है नंबर का बस क्या था। तो आज अगर आप एजुकेशन डे मना रहे हैं तो मौलाना आजाद की फिगर को देखिए, जो बंदा आप लोगों के लिए पैसे के मिनिस्ट्री छोड़ देते तालीम की मिनिस्ट्री में आया, जो बंदा तमाम तालीमी इदारे शुरू करा, उसके एवज आप लोगों को मौलाना आजाद स्कॉलरशिप दी जा रही है उनके नाम कि आप लोग तरक्की करो। तो अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो। और ऐसा इंसान सदियों में पैदा होता है, जैसे कि सरोजिनी नायडू बोलते थे उनके बारे में, मौलाना के बारे में, कि जब मौलाना पैदा हुए तभी वो 50 साल के हो गए, मतलब उनकी जहानत थी। और जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तान में पूरी सियासत की किताबें पढ़ा, उसके बाद यूरोप जाके वहाँ की सियासत को पढ़ा। जब मैं हिंदुस्तान वापिस आकर मौलाना से बात करता हूँ, देखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा इनके साथ। अब गांधी बोलते थे कि सदियों में एक इंसान पैदा होता है मौलाना आजाद से, तो हम उनके थोड़े बहुत चीज़ों को तो ले लें। चलो हिस्ट्री मत पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, पढ़ के अपने अंदर वो ऑब्जर्व करो, जज करो। डिग्री या मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो IAS IPS क्वालिफाई कर लेते हैं, जो टेंथ में कभी 4 बार फेल हो चुके हैं। तो मौलाना आजाद कभी स्कूल नहीं गए थे, वो जामा ऐसा में अपने यूनिवर्सिटी गए थे। तो इसके लिए जैसा कि आयशा मैडम बोलेंगे, तो डिसिप्लिन सबसे पहली चीज़। अगर बच्चे को 3 टाइम खाना देने के बजाय 3 टाइम का एक बार दे दिया जाए, दे सकते ना, क्यों 3 टाइम अलग अलग दिया जाए, एक ही बार में दे सकते, लेकिन उन्हें अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये सुबह का सुबह में दिया जाए, दोपहर का दोपहर में दिया जाए, शाम का शाम में, ये डिसिप्लिन है। इससे हट के नहीं बेटा चल 3 टाइम का एक ही बार खा ले, चल खुदा हाफिज़ बोल दो, 3 दिन के बाद आप लोगों की वही हालत है। तो अपने आप के अंदर एक नज़्म ज़ब्त लाइए। बाकी बस बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप सबको और मिनाज साहब को दिन की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद। शेर नहीं बोलता हूँ भाई, बहुत हो मोहम्मद मतीन अहमद, सदर लेक्चरर्स एसोसिएशन निर्मल, हमारे कारगुजार सदर जिला निर्मल लेक्चरर्स एसोसिएशन, और हमारे साइनशीन पर मौजूद आयशा बेगम और हमारे अशराफ तमकीन और मिल्लत के होनहारों, डॉक्टरान मिल्लत, रोशन मुस्तकबिल के जगमगाते सितारे, आज मुझे ये जो मौका दिया गया है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
के नाम से हम जो कौमी यौम तालीम मनाया जा रहा है वो एक बेहतरीन ज़रिया हमको ये प्रोग्राम करने का मौका मिला। आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बहुत ही गचागच इस तकरीर को सुनने के लिए जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका फर्दन इस्तकबाल करता हूँ और आपकी खामोशी को मुबारकबाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, जिन लोगों ने भी अपना कीमती वक्त निकाला, जिन लोगों ने भी अपने वजूद का एहसास इस कॉलेज में बताया, वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। ये लम्हात याद रखे जाएंगे, ये लम्हात को भूला नहीं जाता। अभी हमारे मदीना साहब ने बहुत अनमोल बातें आपको बताई है कि सबसे पहले हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करना चाहिए, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करना चाहिए। क्योंकि तालिब इल्म की जिम्मेदारी है 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। अगर तालिब इल्म अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर फील करता है तो दुनिया का अजीम तरीन कामयाब तालिब इल्म बनकर निकलेगा और मुस्तकबिल में उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहकर रोजगार हासिल करेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या खुद मुख्तफी होकर अपने कौम व मिल्लत और अपने अफराद ख़ानदान को आगे ज़िंदगी गुजारने का असासा बन सकता है। और साथ ही साथ आयशा मैडम ने जो अखलाक के ऊपर जो बातें बताई है वो अनमोल नेमत है। अगर उनके बातों पे अमल किया जाए तो यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत रोशनी कायम होगी। तो अखलाक के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, एक शेर याद आ गया, उन्होंने मुझे बोलने पर मजबूर किया। बात करने का सलीका हो अगर इंसान को, बात करने का सलीका हो अगर इंसान को, दिल तो क्या पत्थर भी पिघल जाते हैं। हम रोजमर्रा अपने लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका बुजुर्गों का एहतराम करना, बुजुर्गों को खंदा पेशानी से मिलना, ये खुदा ताला की तरफ से जो फरिश्ते उतारे गए हैं वो फरिश्ते भी नोट करते हैं। जिस तरह लेक्चर साहब के अखलाक को, आपके रहन सहन को देखते हैं, उसी तरह दुनिया के अंदर खुदा ताला ने भी फरिश्तों को उतारा है कि है कोई खुदा ताला का बंदा जो दुनिया के अंदर बंदगी बजा रहा है। साहब की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे शेर याद आ रहा है, वो शेर आपके ऊपर गालिब हो सकता है। मतीन साहब ने जो बात बताया कि अगर क्लास का माहौल है तो क्लास में माहौल की हैसियत से ढलने की कोशिश करो। अगर कोई प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में माहौल की हैसियत से ढलने की कोशिश करो। अगर कोई तकरीब होती है तो तकरीब में सबके साथ मिलकर मिलनसारी से उस माहौल का लुत्फ लो, इंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी बार बार आने वाली नहीं है। ये जिंदगी जो है अनमोल नेमत है। 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी, 45 साल जिंदगी, अगर ये जिंदगी में खुशखुर्रम रहकर मिलनसारी इख्तियार ना करते हुए और हम अगर तंग नजरी से अगर दुनिया के अंदर अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तो यकीनन हम इस जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकते। साहब ने क्या कहा कि जिस माहौल में उस माहौल में ढलो, उस माहौल में ढले तो माहौल का वैल्यू मालूम होता है। माहौल पर छा जाना ही जीने का हुनर है। माहौल पर छा जाना ही जीने का हुनर है। वो जी नहीं सकता जिसको माहौल का डर है। बार बार का शेर का सुनना, वो शेर के 2 मिसरे ही अपनी जिंदगी की काया को पलट सकता है। तो अल्लामा इकबाल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, ये महीने में बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुए, टीपू सुल्तान हो, आज चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है जो हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू है। ये तमाम प्रोग्रामों को मिलाकर क्या है तो प्रोग्राम रखा गया है। नेशनल एजुकेशन डे तो दूसरे हफ्ते को था, मगर मजबूरी ये है कि दूसरा हफ्ता रहने की वजह से वो प्रोग्राम नहीं हो सका। उसके बाद संडे था, यानी कि इतवार था, उस दिन में रखा नहीं गया। फिर उसके बाद हम कंफ्यूज हो गए कि गवर्नमेंट के पीर की तातील का ऐलान किया था, पीर की तातील जब थी तो उसमें भी कंफ्यूज हो गए। फिर हम बोले हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर रखकर, जबकि इतना एजुकेशन सिस्टम दुनिया के मुल्क के अंदर दिया है, हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। एजुकेशन डे के तौर पर उनका हक अदा नहीं कर सकते। हक अदा नहीं करना भी हक तलफी है। हक तलफी बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने असलाफ के कारनामों को अपनी आने वाली नस्लों के अंदर मुंतकिल नहीं करेंगे तो हमारे लिए मॉडल कौन होगा? दुनिया में बेहतरीन मॉडल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद सबसे पहले वज़ीर तालीम थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
उनके नक्शे कदम पर चलकर हमको आगे जाकर सियासी एतबार से, तारीखी एतबार से, अपने मजहबी एतबार से उनके नक्शे कदम पर अगर हम चलेंगे तो उनका हक अदा कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल है, आज के इस तासुब भरे दौर में मुनव्वर साहब ने कहा कि आप बहुत बड़ी हिम्मत है एक जगह जमा होना, बहुत बड़ी हिम्मत है उर्दू के फरोग के लिए काम करना, बहुत बड़ी हिम्मत है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर तकरीर रखना। उसके ऊपर एक शेर मौलाना अपने मुनव्वर सर की नजर करता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात के खानों में बट गई है उर्दू, तहफ़्फ़ुज़ात के खानों में बट गई है उर्दू, दानिश्वरान उर्दू सब मजे में। ये अल्फाज हम जो अप्रिशिएट होते हैं, हमारे अंदर जो इनकरेजमेंट होता है आपकी यूनिटी को देखकर, आपके यूनिफॉर्म मेंटेन करने की बुनियाद पर, आपके डिसिप्लिन बढ़ने की बुनियाद पर, आपने इस प्रोग्राम को जो बनाया है, इस प्रोग्राम के खातिर जो नहीं बढ़ने वाले भी है वो लोग बढ़ने को मजबूर हो गए। आपके अखलाक को देखकर, आपके लिबास को देखकर, आपके यूनिफॉर्म को देखकर, आपके आईडी कार्ड लगाने को देखकर, आप जो जमा कर बैठे हैं, ये आप लोगों का बैठना, आप लोगों की तकरीर में जानिशानी के साथ बैठना, चाबुकदस्ती के साथ बैठना, सबको मजबूर कर दिया जाता है। ये जितने भी जो तकरीर के अंदर जो भी अल्फाज बताए गए हैं, अगर ये तालिब इल्म 100 की तादाद में है, 100 की तादाद में नहीं, अगर एक तालिब इल्म भी अगर अमल करता है मतीन साहब की बात पर, मुनव्वर साहब की बात पर, आयशा मैडम की बात पर और जितने भी है, तो हमारा लेक्चर, हमारी तकरीर कामयाब है। अगर पूरे अमल ना करें मगर एक ही कौम का गला उठा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जज्बात है। आप लोगों ने तो जज्बात का इजहार किया, आपने जो नजरियात का इजहार किया, तो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। ये जितने को जो मौका दिया गया है, मैं ये अल्फाज खत्म करके मैं जगह लेता हूँ।